کہ اتنے میں ایک کی نظر سورج پر پڑی تو اس نے کہا دیکھو سورج غروب ہو گیا، تو دوسرے نے آواز دی دیکھو قافلہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر غروب کی بات ہو رہی ہے، ادھر قافلے کی بات ہو رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت لوگوں نے کہا جن کا دل صاف تھا انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے سفر کی تصدیق کر دی۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ اچھا، پھر سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، جیسا مہمان ویسی سواری۔ اور پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو یقینی طور پر بلانا ہو نا تو خالی دعوت نہیں دی جاتی، آپ کے لیے گاڑی بھیج دیں، آپ کے لیے ڈرائیور بھیج دیں۔ یہاں رب نے حضور سے ہی نہیں فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیے گا، نہیں، آپ کو تو آنا ہی ہے۔ محبوب سواری بھی بھیج رہا ہوں، اور رکاب تھامنے کے لیے جبریل کو بھی بھیج رہا ہوں، آپ کو آنا ہی ہے۔ اللہ اکبر، آنا ہی ہے آپ کو۔ اب سواری کا انتخاب یاد رکھیں، جنت کے اندر بہت سارے براق موجود تھے، لیکن کوئی شوخی کر رہا ہے ابھی میرا نمبر لگ جائے گا، میرا سلیکشن ہو جائے گا، کوئی قد اونچا کر کے اس طریقے سے سب کر رہے ہیں۔ ایک براق گردن جھکائے کھڑا تھا، ایک دم مغموم، نگاہیں جھکائے ہوئے، اور یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرا سلیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رب کو اس کی عاجزی پسند آ گئی، اس کی عاجزی پسند آ گئی۔ مولا نے فرمایا اس براق کا انتخاب کرو میرے محبوب کی سواری کے لیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کا انتخاب ہوا۔ حضرت جبریل امین لے کر کے آئے۔ آپ جانتے ہیں براق پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے کی تیاری کر رہے تھے تو براق نے مچلنا شروع کیا۔ آج ہی کی رات شب میرا شوخی کرنا شروع کیا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا براق تجھے معلوم ہے تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ کہا اسی لیے تو شوخی کر رہا ہوں۔ کہا شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کہا آج ہی تو رات، آج کی رات ہی تو مانگنے کی رات ہے۔ کہا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا حضور سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جس طرح یہاں سے لے کر لامکاں کی سیر کے لیے مسجد اقصی تک کے لیے میرا انتخاب حضور نے کیا ہے، اسی طریقے سے جنت کی سیر کے لیے بھی حضور میرا انتخاب فرما لیں۔ پتا چلا آج کی رات مانگنے کی رات ہے اور مرادیں پوری ہونے کی رات ہے۔ اب یہاں دو باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تو تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں۔ ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا، قرآن کی آیت سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اتنا لمبا سفر اور اتنے مختصر سے وقت میں، اسے کہتے ہیں طی مکانی۔ طی مکانی کس کو کہتے ہیں؟ لاکھوں میل کی مسافت ایک جھٹکے میں طے کر لینا، یہ ہے طے مکانی۔ کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے۔ 900 میل کی دوری پر تخت بلقیس موجود، اتنا دور، 900 میل کی دوری پر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچا دے؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک او کما قال۔ جتنی دیر کھڑے ہونے میں لگتی ہے نا جس جگہ پر، اس سے پہلے جو ہے جن نے کہا کہ میں تخت بلقیس کو لا کر سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، تو آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا کہا معلوم؟ 900 میل کی دوری پر تخت، اور اتنا سا تھوڑی تھا کہ جیب میں لے کے آ جاتے، ٹنوں وزن کا تخت۔ اب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا یا سلیمان علیہ السلام یہ پلک جھپکتی ہے نا، اس کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پلک کے جھپکنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا لمبا سفر
पलक के झपकने से पहले जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी तय कर सकता है, तो जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया हो उसके लिए ये सफर कितना कितना लंबा हो सकता है? नहीं, उनके लिए भी ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे जल्दी से तय करवा दे, ये उसकी कुदरत कामिला है और उसके करम की बात है। अब आइए तय जमानी को ले लीजिए, ये मकान की बात हुई ना, डिस्टेंस पे था, फासला। अब तय जमानी को ले लीजिए, पीरियड, सदियों की बात, सदियों की बात। अब वो सदियों का पीरियड लम्हे में खत्म हो जाए, सदियों का पीरियड लम्हे में खत्म हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? इसलिए कि रात के मुख्तसर से वक्त में, ये कुरान कह रहा है ना, रात के मुख्तसर से वक्त में पढ़ो कुरान, इसका भी सबूत तुम्हें कुरान में मिलेगा। 309 साल तक असहाबे कहफ, जरा पढ़ो, सोए रहे 309 साल। और जब बेदार हुए तो उनसे पूछा गया कब से तुम लोग यहां पर हो? तो कहा ऐसा लगता है एक दिन या आधा दिन। ये कुरान कह रहा है, यौमन औ बाद यौम। पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू चाहे तो किसी के लिए ज़मा मकान उसको बहुत महदूद करके उसके सारे सफर को आसानी से तय करवा दे। इसलिए हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैंने सफर किया, हुजूर ने ये फरमाया कि मेरे रब ने मुझे सैर कराई। तो अब रसूल आजम के सफर पर एतराज करना गोया माअल्लाह अल्लाह की सुबूहियत पर एतराज करने के मुतरादिफ है। और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई नबी गए तो अभी तक नहीं आए, और कोई आए तो गए नहीं। हजरत आदम जन्नत से आए जमीन पर, फिर इसी रास्ते से वापस नहीं गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद हैं, जानते हैं सब। अब वो लोग जो एतराज करते हैं कि दरमियान में कुर्रे नार है, कैसे गुजरे होंगे, कैसे कोई पहुंच सकता है, कैसे इतना लंबा सफर। अरे खुदा के बंदो, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रकाब थामने वाला जिब्रील, उसकी रफ्तार का आलम यह है कि आप देखिए, गौर कीजिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुएं के अंदर उनके भाइयों ने डाला, अब कुएं के दहाने से तह का आप मामला देखें, ऊपर से कोई चीज फेंकी जाती है तो जल्दी से कशिश की वजह से, जो है कशिश की वजह से जल्दी से वो नीचे आती है। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको कुएं में फेंक रहे। इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचते, वहां से हजरत जिब्रील निकले और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथ पैरों में ले लिया। ये जिब्रील की पोजीशन है जो हुजूर की रकाब थाम रहे हैं, हुजूर के कदमों का बोसा ले रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, उस वक्त भी इधर से मिंजनिक के जरिए आग में उनको रवाना किया गया और उधर से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रवाना हुए। इससे पहले कि वो आग के करीब पहुंचते, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को हजरत इब्राहिम की खिदमत के लिए भेज दिया। तो जब गुलाम की रफ्तार इतनी तेज है तो आका की रफ्तार का आलम क्या होगा। जब खादिम जिब्रील इतनी तेज रफ्तार से आमदो रफ्त करते हैं तो फिर हुजूर के लिए कौन सी चीज बईद होगी। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। बस एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, सुन लो, हमारे आका की शान बहुत अरफ वाला है। अपनी किस्मत पर नाज करो उस रसूल के उम्मती होने पर जिस रसूल की जूती के तिस्मे को बांधने की तमन्ना हजरत ईसा किया करते थे, और जिस रसूल की उम्मत होने की दुआ हजरत मूसा कलीमुल्लाह किया करते थे, अल्लाह ने उस रसूल की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। और आज
उस रसूल की उरूज की रात महराज की शब है, शब महराज है। रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज की रात अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक सोच अता की, एक फिक्र अता की, जब दुनिया तुम्हें छोड़ रही हो, जब मसाइब के बादल तुम्हारे सर पर मंडला रहे हो, जब तकालीफ की वादियों से तुम गुजर रहे हो, तो कभी मायूस न होना, हर रात के बाद सवेरा है। आज मेरे महबूब को तुम देख लो, इन पर तकालीफ के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन हमने महबूब को वो सैर कराई और उस बुलंदी पर ले गए जिस बुलंदी पर इससे पहले न कोई गया है, न कयामत तक कोई जा सकता है। तो मुसीबतें कभी कभी उड़ाने के लिए आती हैं, कभी कभी बुलंदी पर ले जाने के लिए आती हैं। इसलिए कि मुसीबत में आदमी अपने वजूद में मौजूद सारी सलाहियतों में से सबसे बड़ी सलाहियत जो है वो है सब्र। अगर वो दामन सब्र थाम लेता है तो फिर अल्लाह ताला उस पर ऐसी करम की नजर फरमाता है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसे बुलंद व बाला मकाम अता करता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात बहुत अजमत वाली रात है, बहुत बरकत वाली रात है, बहुत रहमतों वाली रात है। रसूमात के तौर पर जिस तरीके से हमारे बहुत सारे भाई रात को ज़ाय कर देते हैं, बाइकों पे घूमते हैं, होटलों में बैठते हैं, खुदा के लिए आज की रात को इस तरीके से ज़ाय मत करना। आज की रात बहुत अजीम रात है। अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से माफ़ी चाहो, अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह की पकड़ से बचने की दुआ करो, अल्लाह की बारगाह के अंदर मसाइब के बादल छट जाएं, इसके लिए दुआ करो। आज जो भी मांगोगे महबूब के सदके में अल्लाह सब कुछ अता कर देगा। शर्त यह है कि कोई नाजायज सवाल या गुनाह का सवाल आज की रात अल्लाह से न किया जाए। क्या मांगोगे? ईमान पर जिंदगी, ईमान पर मौत, गुनाहों से तौबा, नेकियों के रास्ते पर चलने का आज़्म, गुनाहों से रिश्ते को तोड़ने का आज़्म। जब ये कैफियत बन गई और ये दुआ अल्लाह की बारगाह में हमने की तो मौला को ये दुआ भी बहुत पसंद है और ख़ास तौर पर तौबा करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। आज पूरी दुनिया में मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं, ज़मीन पर ज़लज़ले आ रहे हैं, परेशानियां दरवाज़ों पे दस्तक दे रही है, पूरी दुनिया के अंदर मंदी का एक बादल मंडला रहा है, अजीब सिचुएशन है। मुसलमानों मायूस मत हो जाओ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ादिर मुतलक है। अल्लाह पर भरोसा करो, उसकी तरफ रुजू करो, उसकी इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जरा महसूस करो मंसूबे हर बनाने वालों ने बनाए, तुर्की वालों ने भी अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे के लिए बहुत कुछ जमा करके रखा होगा, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं होगी कि एक झटके के अंदर उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और जो सोए थे वो सोए ही रह गए और जिन्होंने बनाया था उसमें से कुछ भी इस्तेमाल करने का मौका उन्हें नसीब न हुआ। एक जुमला जहन में रखो, अल्लाह मारना चाहे तो परवरदिगार मामूली ठोकर के जरिए भी मौत के घाट उतार देता है और बचाना चाहे तो 8 दिन के बाद भी मलबे के नीचे से 6 माह के बच्चे को बचाता नजर आता है। ये मेरे रब की कुदरत है, उसने अपनी कुदरत के जलवे दिखाए हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, पलट आओ अपने रब की तरफ और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल मुझे, आपको, सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज एक अहम और जरूरी ऐलान मुझे करना है और इसी ऐलान को करने की गरज से आज मैं जाने वाला था बैतुल मुक़द्दस और शब मेराज मुझे वहीं करनी थी, लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए मैंने यहां आज आना जरूरी समझा। वादा पहले कर चुका था यहां का, तो आज जो ऐलान करने जा रहा हूं वो ऐलान ये है, स्कूल जहां हम बच्चे को तालीम के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारा बच्चा स्कूलों में जाने के बाद बहुत सारी गलत आदतों का शिकार बन जाता है। मजहब के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, अखलाकियात के बाब नहीं सिखाए जाते, नतीजतन हम चंद टकों को बचाने के लिए अपने बच्चे के मुस्तकबिल को अंधेरे के अंदर डाल देते हैं। अभी आपने मुझसे पेशतर 9 बच्चों का कमोबेश कुरान मुक़द्दस के ख़त्म का मंजर मुलाहिज़ा आपने किया। ये आप
کہ شہر بھیونڈی سے قریب مہاپولی میں پڑھنے والے یہ نگینے ہیں، اور اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں مفتیان کرام اور علماء کرام کی ایک جماعت جو جامعہ حرا نجم العلوم مہاپولی میں پڑھ رہی ہے. یہ مفتیان کرام کی جماعت اور علماء کی، اور یہ بچے بھی وہیں کے تعلیم یافتہ ہیں اور تربیت یافتہ ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پیسوں کو نہ دیکھیں، بلکہ پیسے تو ہم آپ سے اتنا لیتے بھی نہیں ہیں، فیس بھی ہماری اسکول کی اتنی نہیں ہے جتنی دوسری اسکولوں کی ہے. بس میرا اعلان صرف اتنا ہے، آپ اپنے بچے ہمیں دیجئے، ہم بہترین انسان بنا کر آپ کو لوٹا دیں گے. سنی دعوت اسلامی کا اسکول حرا انگلش اسکول، جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے. اور میں اللہ کے شکر کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ رب کا کرم ہے کہ جب سے ایس ایس سی کا بیچ ہماری اسکول میں شروع ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک ایس ایس سی کا ریزلٹ ہمارا 100% ہی الحمدللہ آیا ہے. اہل سنت و جماعت کا اسکول، جہاں پر صرف انگریزی تعلیم نہیں ہوتی، یہاں سے بس میں بیٹھ کر مہاپولی جانے والے بچے گانے گنگناتے نہیں، نبی پر درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں.